Hello student, good morning. Today we are going to start a new topic. The name of topic is polynomials. It is a new chapter, second chapter of the 9th mathematics. Then the first of all know what is polynomials. Do you know what is polynomials? Tell me. Do you know what is polynomials? The polynomials is an algebraic expression which includes the constant, variables and exponent. Constant, variable and exponent. Do you know what is constant? Constant something. Constant is a something. The value of that can't be changed. Can't change. मतलब कोई ऐसा चीज जिसका वैल्यू चेंज ना हो सके. It means something that value can't be changed. Let us see another example of the constant 5. We can say that 10, 15. Numerical value, we can say that numerical value of the number can't be changed, so we can say that it is constant. In the case of variables, we know variables what? The value of something can vary with time. मतलब समय के हिसाब से जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए. It means we can say that the variables means what? You can write x, y, z, any letter. It is a variable because according to the time the value of the variable can be changed. So we can say that it is variable. What is exponent? Exponent, we can say that it's power. Like this, let us e के power 3, it is exponent. X के power 5, it is exponent. Okay, so we know the three terms. What is constant, what is variable and what is exponent. Now the next is, it is the it is expression in which the variables have only positive integrals of the power. It is the property of what? It is the property of polynomials. The power of the polynomials is always positive integrals. Power is always positive integrals. Let us see an example and you clarify more. 4x3 plus 3x square plus x plus 3 is a polynomial in variable x. Yes, we can say that it is a polynomial. Why? Because the power is positive integer 3, here also positive 2. Okay, so we can say that it is a polynomial of variable x. Another example, what? 4x square plus 3x minus 1 minus 4. Here the power of the x is what? Minus 1. So we can say that it is not a polynomials. It is not a polynomials. Another example we take. Example is 3 x के power 3 by 2. Here the power of the x is what? 3 by 2. It is not an integral because in integrals it will be 3, 2, 4, 5, anything, but it is 3 by 2. It means it is in the form of fraction. So we can say that it is not a polynomials. Okay, I hope you can identify which one is polynomials. Let me show another example. Tell me the answer. X square plus x minus 1 plus 3. It is polynomial or not? Not. Why? Because the power of the x is what? Minus 1. Okay, then the next is, and let us terms of the polynomials. It is the terms of polynomials. We assume that it is a polynomials, and 2x square, 3y and 2. How many terms in this polynomials? There are the three terms in this polynomials. Which one? One is 2x squared, one is the first term, 3y is the second term and 2 is the third terms. Then the question asks you that how many terms in this polynomial, then you can write here how many terms? 3 terms. Okay, how many terms? To 3 terms. How many variable? 2 variables. Which one is variable? Variable one is x and another is y. One is x and another is y, and exponent 2 is the exponent. So let us describe it in more details. Polynomials are denoted by px, qx, etc. Any of the polynomials you can write anything, px, qx, y. I will show you.
Another thing is, in the above polynomials 2x squared 3y plus 2 are the terms of the polynomials. It is the terms of polynomials. Another things, 2 and 3 are the coefficient. You understand better it, that the coefficient is what? In Hindi you can say that the पड़ोसी. x square के पड़ोसी कौन है? 2 है. It means 2 is the coefficient of x square. y का पड़ोसी कौन है? 3 है. It means the 3 is the coefficient of y. And 2 has no any coefficient. 2 is the constant. Okay. Then let us see here another things. X and y are the variables. I said you that there are the two variables in this terms, in these polynomials. X and y are the variables. And another thing is 2 is the constant terms which has no variables. 2, what is 2? 2 is the constant terms which has no variables. I hope you can identify a very easy way that how many terms, how many variables, and which one is constant and which one is what? Which one is exponent. Okay, let us one example. See the example. Tell me, it's your question. Tell me the how many variables? So only one variables. Why? Because here the x, so you can set the only one variables. Okay, how many variables? Only one variables. How many terms? Tell me how many terms? How many terms? So 1, 2 and 3. So there are the 3 terms. Okay. Exponent, which one is exponent? So 2 is the exponent. Okay, and another thing is left? No. Okay. Coefficient of x square. Tell me, what is the coefficient of x square? The coefficient of x square is 4 and coefficient of x is 3. I hope you understand this differentiate better. Okay, then we move next. What is polynomials in one variables? You understand that what is polynomials, also understand that what is the terms, what is the variable, and what is exponent. Now we see that the polynomials in one variables, it means polynomials have only one variables. If x, then all the forms of the polynomial we use only x, no other another things. So we can say that if there is only one variable in the expression, then this is called the polynomials in one variable. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा तो हम उसे क्या कह देंगे? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट वन इज वी कैन से दैट एग्जांपल. देन एग्जांपल के थ्रू से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. x³ plus x minus 4 is a polynomial in variable x and is denoted by px. तो यहाँ पे कह रहा है जो x³ plus x minus 4 is a polynomial. It is a polynomial and we can denote it as a px. We can write like this. What? Px is equals to x³ plus x minus 4. We can write like this. Of these terms, we can write like this. Px is equals to x³ plus x minus 4. So we can say that any of the polynomial we can determine px, qx. It is called a function. Okay. Next one is r square plus 2 is polynomial in the variable of r and denoted by pr. Okay. So any of the polynomials denoted according to their variables. वेरिएबल्स के हिसाब से हम डिनोट करेंगे. कैसे? यहाँ पर अगर r के टर्म है इसमें तो हम इसको pr लिखेंगे. अगर यहाँ पे x का टर्म दे रखा था, यहाँ भी x था, तो हम इसको क्या लिखे? px लिख दिए. ठीक है. जैसे यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं pr इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 2. वी कैन राइट इट pr इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 2. अनदर थिंग्स इज qx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x. तो इट इज अनदर पॉलिनोमियल्स. ओके. Then we can write one more example. Px is equals to x plus x square plus pi. Why? Because x, here is also variable x, pi is the constant. Okay, the value of pi is fixed, so we can say that pi is constant. Next, types of polynomial on the basis of the number of terms. Here we see that
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी हम पहले पढ़े हैं, कुछ देर पहले पढ़े कितने टर्म्स किसको कहते हैं हम, पावर किसको कहते हैं, डिग्री किसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं। तो टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो टर्म्स के आधार पर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, पोलिनोमियल से। हियर वी सी दैट नंबर ऑफ टर्म्स, सी हियर वन थिंग्स, व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, जीरो, इफ द जीरो टर्म्स मतलब एक भी टर्म्स नहीं हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जीरो पोलिनोमियल्स। जीरो एग्जाम्पल, इट इज जीरो पोलिनोमियल्स। जब एक टर्म्स हो, एक टर्म्स इज मोनोमियल, जैसे एक्स स्क्वायर, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस, ओनली वन टर्म्स, सो यू कैन से दैट इट इज मोनोमियल। When two terms and the number of terms will be 2, then we can say that it is binomial. X square plus 1, how many terms, 1 and 2. Trinomials, 3 terms is known as trinomials, and lots of more, 1, 2 and 3 terms, so you can say that it is trinomials. Then another thing is, I hope you understand it better. Another thing is that what is degree. Do you know degree? Degree means what, not a B.Ed and B.Sc and डॉक्टर की डिग्री। इस डिग्री का मतलब होता है पावर। एंड लेट अस नो इन डिटेल, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम क्या कह देंगे, डिग्री कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 2 प्लस एक्स के पावर 1 प्लस 3। तो व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज 5। व्हाई, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल and the highest power is 5, so you can say that it is 5 degree. Okay, then let us do another example and you clarify it better. See here one things, there are the 4 types of polynomials on the basis of degree and more. इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 4 है इसमें। कौन कौन, फर्स्ट वन इज जीरो पोलिनोमियल्स। तो जीरो पोलिनोमियल्स हैज ओनली वन, जीरो पोलिनोमियल्स हैज ओनली वन, व्हाट ओनली वन, constant, any constant you can write at 0. how can you write it, see here जैसे 3, तो 3 के पावर x, x के पावर 0, x के पावर 0 means what, power of anything you learn in previous classes, power of anything is 0, then the value of that is 1, so we can say that the power is 0, then the value of x 0 is 1, then it will become 3. तो जीरो पोलिनोमियल इज कांस्टेंट, जीरो। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल मीन्स द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1. इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, इट मीन्स वी कैन से दैट द एनी वैल्यू which has only one power. See here x, here is x, what is the power of x is nothing, nothing means 1, अगर कुछ नहीं है पावर में तो 1 है। here y plus 5 power is 1, so you can say that it is linear polynomial means 1 power. Okay, here 0 power. And next is quadratic polynomials. Quadratic polynomials means power 2 and cubic polynomials means power 3. तो हम अब आसानी से पहचान सकते हैं जो डिग्री कितना हो सकता है। हाईएस्ट डिग्री किसको कहेंगे, जिसका पावर जितना ज़्यादा होगा, जैसे x के पावर 5, x के पावर 4, तो डिग्री कितना होगा 5, मतलब हाईएस्ट पावर जो होगा क्या होगा, डिग्री होगा. ओके, लेट अस मूव नेक्स्ट. जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, it is the very important things, and you have to face the several types of problem on the basis of this concept, so concentrate here. Zero polynomials what? Zero polynomials is what? It means which of the value are fixed on the place of this variable, so the value of the polynomial become 0. Okay,
It means px is if the px of the polynomial then the number a and will be the zero of the polynomial then pa is equals to 0. We can find the zero of the polynomials by the equating to 0. तो कहने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रामा लिख रखा है ना, तो हमें समझने की बात है। समझने के लिए क्या करना है हमें, कहने का मतलब है किसी भी पोलिनोमियल होगा तो पोलिनोमियल के अंदर क्या हो सकता है, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस वेरिएबल का हम ऐसा कौन सा वैल्यू रख दूं, उस वेरिएबल का हम ऐसे कौन सा वैल्यू रख दूं ताकि पूरी की पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, आसानी होगा। जैसे गिवन द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू x + 5, इसे लिखने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। px कहाँ से आया मैंने बता दिया। जो किसी भी पोलिनोमियल को हम px, qx, tx के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, इसको हम px भी लिख सकते हैं, qx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें px इक्वल्स टू x - 5 दे रखा है देन वी नीड टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे जो हम पहले इसको इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे है x - 5, हमें इसकी वैल्यू क्या चाहिए, इसकी वैल्यू हमें 0 चाहिए, तब होगा इसका जीरो पोलिनोमियल। तो इसका वैल्यू 0 करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या, इसके इसको 0 रख दो, सिंपल सी। व्हाट, x - 5 इक्वल्स टू 0। तो x - 5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू 5। इट मीन्स द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 5। इसका मतलब, कहने का मतलब है अगर हमने x के जगह पर इस 5 को रख दूं, इसका वैल्यू px का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रख के देख लीजिए आप, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 - 5 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना दुनिया के सबसे आसान काम है। दुनिया के सबसे आसान काम क्या है, px, qx, gx जो भी दे रखा है उसके इक्वल टू 0 कर दो और उसका जो वैल्यू आ जाएगा x का, वही तो तुम्हारा क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल्स है। नेक्स्ट, सो 5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स और रूट ऑफ द पोलिनोमियल्स। अब 5 क्या है, व्हाट इज 5 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो हम कह देंगे जी इस पोलिनोमियल का जीरो वैल्यू कौन है, 5 है। क्यों, क्योंकि अगर हम 5 हम रखते हैं इसके x के जगह पे, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो x के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी रखने से आंसर 0 नहीं होगा, लेकिन 5 रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पोलिनोमियल्स और रूट ऑफ द पोलिनोमियल्स। इसी को हम जो जीरोज भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। The root of the polynomial is basically on the x intercept of the polynomials। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा ये रूट ऑफ जो पोलिनोमियल है क्या है, व्हाट इज रूट। तो रूट ऑफ द पोलिनोमियल इज जितने वैल्यू आएंगे ना x के, इसका मतलब वो x एक्सिस को उतनी बार कट करेगी। कभी कभी हमें x की 2 वैल्यू आएंगी। जब हम सेपरेशन मेथड से पिछली क्लास में 8th क्लास में जब सॉल्व कर रहे थे तो x की वैल्यू कभी कभी 2 वैल्यू आता था, 4 और 5 मान के चलिए। इसका मतलब है जो 4 और 5 दोनों जगह पर क्या होगा, x को इंटरसेप्ट करेगी लाइन। ये लाइन जो हम जब ड्रॉ करेंगे तो इस एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है। तो हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, बेसिकली इंटरसेप्ट ऑफ द पोलिनोमियल। अगर 2 वैल्यू आया है तो लाइन को 2 जगह कट करेगी, 1 वैल्यू आया है तो लाइन को 1 जगह कट करेगी। तो इसको डिटेल में 11th में से चर्चा होती है, लेकिन फिर भी हम जीरो का मतलब समझ गए। क्या कहने का मतलब होता है इसका, x इंटरसेप्ट द पोलिनोमियल। इफ द पोलिनोमियल हैज 1 रूट, अगर किसी भी पोलिनोमियल का एक रूट है, इट विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 1 पॉइंट। अगर 1 वैल्यू है तो 1 जगह कट करेगी, 2 वैल्यू होता तो 2 जगह कट करती, 3 वैल्यू होता तो 3 जगह कट करती, ठीक है। ऐसा है पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमें सिर्फ 1 जगह और 2 जगह कट करने वाली पढ़ना है। कट करने के लिए ग्राफ भी हमें नहीं दिया जाएगा, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिमाग में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। अगर पूछे अगर 1 रूट है, 1 वेरिएबल है तो x एक्सिस को कितनी बार काटेगी, तो 1 बार। 2 वैल्यू है तो कितनी बार काटेगी, 2 टाइम्स। ओके, लेट अस नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड p1। व्हाट इज p1 ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू x² - x + 1। अब p1 कहाँ से आ गया,
तो P1 के मतलब क्या, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, Px इक्वल टू इतना लिखते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं इसको लिखने में। लेकिन जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या बोल रहा है रखने के लिए, 1 बोल रहा है रखने के लिए। तो सिंपल सी काम है, आप भी तो रख दो p इंटू 1 इक्वल टू क्या, जहाँ x है वहाँ 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, कितना हो गया आंसर, आंसर हो गया 1। ठीक है, तो p ऑफ 1 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, तो आंसर हो गया ये। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज रिमाइंडर थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर, आपको समझ में आ गया होगा ये, आया। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मुझे बताइए आप यहाँ पर P2 इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कॉपी कलम लेके फटाक से सॉल्व कीजिए। P2 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, 2 है तो 2 के जगह x के जगह 2 रख दिए, पावर को पावर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बाकी को सिर्फ वेरिएबल के जगह जितना दे रखा है उतना रख देंगे, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 व्हाट 8, 8 विल बी द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। रिमाइंडर थ्योरम अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि इससे हमें पता चलता है हम रिमाइंडर कितने रख सकते हैं, हाउ मेनी रिमाइंडर। वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिवीजन, हम प्रॉपर्टी जानते हैं भाग के, है ना, बचपन से पढ़ते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बचपन से पढ़ता है 4th 5th क्लास से। बस इसी को हमें क्या करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। दिस सेम फॉलो द डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा क्या करता है, डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल को फॉलो करता है। हाउ कैन इट फॉलो इट, सी हियर, px इक्वल टू gx qx प्लस rx, यहाँ पर जिसको हम डिविडेंड कहते थे ना, वही डिविडेंड यहाँ पर gx कहलाता है, और कोसेंट यहाँ पर qx कहलाता है, और रिमाइंडर हमारा क्या कहलाता है, rx कहलाता है। सिंपल सी है, और सारा प्रोसेस सेम है, बच्चे की क्लास जैसे। हाँ, rx इक्वल टू 0, वेयर rx जो है रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है सो डिग्री ऑफ gx से छोटा हो सकता है। अब डिग्री ऑफ gx से छोटा कैसे हो सकता है, अब मान के चलो आपने 3 से डिवाइड किया, आपने किस में 8 में, क्या रिमाइंडर 5 आ सकता है, बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर हमेशा 3 से कम ही आएगा, क्योंकि अगर 3 से कम नहीं आएगा रिमाइंडर तो फिर से भाग लग जाएगी, है ना। तो रिमाइंडर हमेशा किस से, डिविजर से कम ही आता है। यहाँ पे कह रहा है जो डिग्री ऑफ द क्वेश्चन, डिग्री ऑफ क्वेश्चन से कम आना चाहिए रिमाइंडर। तो देखते हैं आगे और क्वेश्चन, बाकी कंसेप्ट क्लियर होगा इससे। इट से दैट द px डिवाइडेड बाय gx एंड गिव्स द qx एज द क्वोशिएंट ऑफ द rx एज रिमाइंडर। अगर हम px gx को डिवाइड करते हैं, px को डिवाइड करेंगे gx से, तो qx हमारा क्वोशिएंट मिलेगा और rx क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। एक एग्जांपल से करते हैं, अभी सारा के सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल विद द मोनोमियल्स। अब आप मोनोमियल से डिवाइड करते हैं, मोनोमियल्स का मतलब क्या, monomials means only one terms x, it is monomials. So what is this, it is the 3x cube plus x square plus x divided by x। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो x से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। x से डिवाइड किया 3x क्यूब को, x से डिवाइड किया x स्क्वायर को, x से डिवाइड किया x को, क्या बचा हमें 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें वी कैन सी दैट द कॉमन इन द एबव पॉलिनोमियल वी कैन से राइट इट। अगर जो कॉमन है तो उसे हम एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लो, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, एक्स को हम कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन ले लिए, क्योंकि एक्स सब में था, है ना। यहाँ पर देखिए एक्स सब में है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे हमें यह चीज़ पता चल गया, आई नो दैट जो x is the factor of our this question, x क्या है, इसका फैक्टर है। So we can write that the 3x square plus x plus 1 and x the factor of this। इसका मतलब है जो अगर हमें कॉमन मिल जाए
तो हम क्या कह देंगे, उसको फैक्टर है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम कहते हैं यहाँ पे 8 ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। चलिए इसमें तो सिर्फ 2 ही आ गया। हम 12 लेते हैं एग्जाम्पल, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 किस किस का फैक्टर हो सकता है, तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है ना, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 12 का फैक्टर कौन कौन से हैं, 12 का फैक्टर 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, 12 है। इसका मतलब हुआ जो 12 2 से भी डिवाइड लग जाएगी, 4 से भी हो जाएगा डिवाइड, 3 से भी, 6 से भी और 12 से भी। इट मीन्स अगर डिवाइड हो गया तो फैक्टर उसका हो गया। और जब भी अगर आप डिवाइड करते हो किसी चीज़ में, कंप्लीट डिवाइड होता है, तो बताइए रिमाइंडर कितना बचता है, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए। अगर आपने किसी भी टर्म में डिवाइड किया और कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना, 0, सिंपल। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ और पता चल गया, जो अगर किसी का भी रिमाइंडर 0 आ जाए, किसी का भी रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है। और एक चीज़ हम देख लिए, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका फैक्टर होगा। तो हम अभी पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो हमें अभी ज़्यादा दूर नहीं जाना है। यहाँ से पहले डिवाइड सीखते हैं, फिर हम फिर से लौटेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे। यहाँ पे इस डिवाइड को हमें सॉल्व करना है। चलिए बताइए, सॉल्व करके दिखाइए फटाफट, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 प्लस एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने के लिए आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। वैसे तो मैं अभी रूल्स बताऊंगा, लेकिन रूल्स से क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। जो डायरेक्ट दिमाग में आता है वही आसान है, जो हमें अच्छे से समझ में आ गया वही आसान है। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं, क्या करना है हमें, 2 प्लस एक्स है तो पहले हम वेरिएबल को लिखेंगे। वेरिएबल में किसको, जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो। तो x के पावर 1 है, 2 कांस्टेंट है, तो +2 हम इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप ऐसे बचपन में 5वीं क्लास 6ठी क्लास वाला डिवीजन का साइन दे दो। अब यहाँ पे इसमें डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पे लिख दो ना फटाक से, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे कर दो आप। अब बताओ हमें डिवाइड करना है, बोले ये कौन सा डिवाइड आ गया। अब बताइए, यहाँ पे हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ इस वेरिएबल से मतलब रखना है और इस वेरिएबल से। अब बताओ जी, इस x में किस चीज़ से मल्टीप्लाई आप कर दोगे ताकि एक्स स्क्वायर हो जाए, क्योंकि हमें इसको ख़त्म करना है किसी तरह से। अगर ये मर गया तो बाकी काम खत्म। तो बताइए किससे करेंगे हम, तो x में अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई x to x like this, then it will become x square. Now we multiply whole x to this all. तो x से अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टर्म क्या होगा, x स्क्वायर प्लस कितना 2x, तो 2x लिख दिया। समझ में आया, कुछ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x था, यहाँ पर 2x था, तो हमें जब यहाँ के जो नंबर हम ढूंढेंगे उसको ढूंढने के लिए हमें सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना होगा। ओनली वी नीड टू फोकस हियर x. If you multiply x to x, then it will become x square. 2 to x, it will become 2x. अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2x आएगा। अगर आपने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया। अब हम सिंपल से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो जाती है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बच गया, -3x माइनस 2x, कितना हो गया बताइए, -5x। यहाँ पे हमें 1x नहीं लिखना है, माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अभी प्लस का साइन गया, क्यों गया, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे ना। अब 5x माइनस 10 को आप नीचे रख दो। अब किस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, ताकि 5x हो जाए। यहाँ पे x से किस से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा। तो x तो है ही, तो x में तो कुछ नहीं, x से तो इसका मतलब नहीं करना है। अब हमें लाना है -5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x को, तो -5 इंटू x तो -5x माइनस
क्या 5 2 या 10 तो -10 क्या हो गया। अब साइन चेंज करो तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा रिमाइंडर 0 बच गया। तो ये सिंपल सी डिवीजन मेथड है, समझ में आ गया आपको। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने कर दिया लेकिन अब आपको समझा देते हैं इसके थ्रू से। देखिए कह रहा है स्टेप कैसे करेंगे हम। स्टेप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे हम। हाईएस्ट पावर को यहाँ भी पहले लिखेंगे और हाईएस्ट पावर को यहाँ भी पहले लिखेंगे। उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। नाउ द मल्टीप्लाई द डिविजन द टर्म्स, जैसे बचपन में हम करते थे सेम वैसे ही करेंगे। वैसे डिवीजन टर्म यहाँ पर लाएंगे जैसे कि था, यहाँ पे देख लीजिए आप x+2 है, x से मल्टीप्लाई किया, x² माइनस माइनस साइन चेंज होगा -5x - 10 और फिर इसी तरह से इसका आंसर आ गया। ये तो मैं बता दिया आपको आसान तरीके से। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो फिर भी कोई बात नहीं है, समझना है तो समझने से काम है, बाकी तो है ना सब मोह माया है। तो यहाँ पे क्या x+2 x² माइनस 3x माइनस 10 इसको मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर हमारा, रिमाइंडर आ गया 0। और यहाँ पर हम कह देंगे रिमाइंडर इज 0, इसका रिमाइंडर क्या है 0 है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो कहने का तात्पर्य है जो अगर किसी का फैक्टर कोई है, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फैक्टर जानने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, px को आपको डिवाइड करना है किससे, gx से। तो px को अगर आप gx से डिवाइड करते हो, सॉरी चलिए यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल डिवाइड करके बताता हूँ इसको। यहाँ पे x² + 3x² - 1, यहाँ पे इतना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट काम पहले हमें इसको अरेंज करके लिखना है किस फॉर्म में, x+1 में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे g(x) क्या x+1। फिर दूसरा क्या, हम इसको भी रीअरेंज करना है किस फॉर्म में, बड़ी वाली पावर मतलब हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है। हम इसको क्या लिख देंगे, p(x) क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे हम 3x² + x - 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना, आप सिंपल से डिवाइड कर दो, आप क्या x+1 से डिवाइड कर दो किस में, 3x² + x - 1 में, हो जाएगा डिवाइड। और डिवाइड करते टाइम हमें ध्यान किस बात की रखनी है, x यहाँ पे सिर्फ x को ध्यान रखना है, बाकी किसी का नहीं। यहाँ पे x के पावर कितना 1 है और यहाँ पे x के पावर कितना है 2 है। तो चलो आपने x को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 2 हो जाएगा। हम जानते हैं पावर में मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है। इसका मतलब अगर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया। तो चलो x² वाली बात तो बन गई, लेकिन हमें और क्या चाहिए, 3 भी चाहिए ना। तो अगर मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x² हो जाएगा, तो आप 3 भी ले लो। अब हमें इसको फोकस में रख के हमने क्या किया, यहाँ की वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब 3x को आप x से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे हम 3x × x कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। तो अगर 3x² हो जाएगा तो हम यहाँ पर अब हम इस 3x से क्या कर सकते हैं, इसे सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वाले x को करोगे 3x से कितना होगा 3x² प्लस 3x को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, हाउ मेनी, it will become 3x. So we can write it and subtract now as a division methods. Then 3x² minus 3x² cancel out. What remain? minus 3x plus x. minus 3x plus x तो क्या बचेगा -2x -1। अब बताओ इसमें आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना बचेगा। सॉरी यहाँ ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। x तो यहाँ पे है -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा किससे करना है -2 से। -2 से करें तो कितना हो गया -2x और -2। अब यहाँ पर आप करोगे तो कितना हो गया 2x, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, हाउ मेनी रिमेन 2 + 1, मतलब 1 बच गया ना यहाँ। Now we can say that how can you
1 तो आगे, रिमाइंडर कैसे आप लिख सकते हो जो रिमाइंडर 1 होगा? बिना डिवाइड किए क्या कोई प्रोसेस है? तो यही प्रोसेस बताता है कौन रिमाइंडर थ्योरम कहता है, जो आप बिना डिवाइड किए रिमाइंडर पता लगा लोगे। ठीक है, अगर हमसे डिवीजन पूछ रहा है या डिवीजन मेथड से पूछेगा तो आपको बता दिया मैंने ऐसे डिवाइड करना है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और चलते आगे। तो हाँ, मैं कह रहा था कि जो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है जो आप बिना डिवाइड किए रिमाइंडर पता लगा लोगे। कैसे? आप भगवान हो क्या? नहीं, भगवान नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि चलिए मैं एक छोटा सा लेता हूँ आपको, x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0 ले लेते हैं क्योंकि x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसको आप 0 ले लो। तो x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, वी कैन राइट x इक्वल टू -1। अब अभी मैंने बताया था आपको जो p ऑफ 1 कैसे लिखते हैं, तो p ऑफ 1 लिखने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, तो p ऑफ -1 कैसे लिखेंगे, -1 पुट कर दो आप, तो -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर और -1। अब बताओ यहाँ पे आप कितना, यहाँ से -1 -1 तो -2 हम लिख सकते हैं इसको, और प्लस में कितना हो गया, अगर -1 के पावर 2 है तो प्लस पॉजिटिव आ जाएगा नहीं, तो 3 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो बिना डिवाइड किए हम पता लगा लिए कितना रिमाइंडर है। तो एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है, लेकिन हम इसको और डिटेल में देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम को। कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, इफ द px इज एन एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट t बी एनी रियल नंबर एंड px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस t देन द रिमाइंडर ऑफ pt। कह रहे हैं अगर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसको आपने px के जगह पुट किया जैसे मैंने अभी किया था, तो जो बच जाएगा वही रिमाइंडर बचेगा। जो बचेगा वही रिमाइंडर बचेगा। लव एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर लिया हमने क्या, gx qx rx, अगर यहाँ पर आपने x माइनस टी पुट किया तो x इक्वल टू टी हो गया, x इक्वल टू अगर t किया आपने पुट तो क्या हो गया, t माइनस टी इंटू क्यू माइनस टी प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपसे पूछे व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको लिखना है इफ px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेट t बी द रियल नंबर। किसी भी अगर पॉलिनोमियल को आपने क्या किया, डिग्री ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है और t कोई रियल नंबर है, तो px से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो x माइनस टी का जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरीक़ा से सॉल्व करेंगे और फिर हम रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे? पहले तो हम करते हैं a माइनस 1 को डिवाइड करो आप किस में, a के पावर 4 प्लस a के पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, बहुत लंबा चौड़ा है ना। तो a को 4 से करना है तो फटाक से 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 से कर दो आप, a 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना हो गया, a4 और 1 से करेंगे तो माइनस a3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2a3 माइनस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ठीक है, अब हमें किसको, 2a को उड़ाना है, तो a क्यू था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक a है, तो स्क्वायर से करेंगे तो हम प्लस कितना से 2a स्क्वायर से कर दिए, ये क्या आ गया 2a क्यू, फिर 2 से करेंगे उसको तो माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर। अब हम इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, तो हमारे पास सिर्फ बचा है अब a स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम a प्लस 1। अब a प्लस 1 के लिए आप किससे डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा, तो a को हमें हटाना है, सिर्फ 1 से मतलब ही नहीं है, तो 1 से प्लस 1 से करो, सिर्फ प्लस 1 तो कितना हो गया a माइनस 1, अब माइनस प्लस का आंसर कितना हो गया 2। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किए तो रिमाइंडर कितना बचा हमें
2 बचा। लेकिन शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट कौन सा वाला, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, a माइनस 1 की जगह क्या पुट करना है, 0। तो पुट कीजिए आप। अगर हम करते हैं a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। देन नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ 1 एट द प्लेस ऑफ pa। तो pa इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम a के पावर 4 प्लस a के पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब यहाँ पर हमें जहाँ पे a है वहाँ क्या पुट करना है, 1। तो यहाँ भी लिखेंगे हम क्या, p1। तो a के पावर 4 प्लस 1 के पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 2 और 1 3, a की जगह 1, ठीक है। 4 हो गया, 1 2 एंड 3 एंड 4, और 4 माइनस 2 कितना हो गया, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। देखिए यहाँ पर आ गया सर 2। तो हमें रिमाइंडर थ्योरम से क्या चीज़ पता चल गया, जो रिमाइंडर हम जो बिना डिवाइड किए पता कर लेंगे। कैसे बिना डिवाइड किए पता करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे आसान तरीका इक्वेट करके 0 करेंगे, एक्स पी की जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम पी एक्स में पुट कर देंगे, और हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वही रिमाइंडर होगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव द नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम आप जानते हो, जिससे अगर डिवाइड किया हमने, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था आपका 12 का, और 12 का फैक्टर बताया था क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसका मतलब अगर इससे आपने डिवाइड किया ना, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब है जो हमें अगर पूछ रहा है कोई, जो आप फैक्टर चेक करके बताओ, तो फैक्टर चेक करने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। वी यूज द रिमाइंडर थ्योरम, एंड इफ द रिमाइंडर बिकम 0 इट मीन्स इट इज अ फैक्टर, इट रिमाइंडर डज नॉट बिकम 0 इट मीन्स इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। सो वी कैन से दैट चेक वेदर द x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब हमें अगर फैक्टर अगर चेक करना है, वी नीड टू चेक इट। then how can I check it? Then first of all x minus 3 px and then the p0. If the remainder will be 0, then it will be the factor. Then see here, x is equals to x minus 3 is equals to what, 0. Then x is equals to 3. If the value of x become 3, so we can write it p of 3. Then write it here, p of 3. P3 is equals to what? In this equation I am putting the value of 3 in this equation, px. What? 3 की power 3 minus 4 into 3 के square plus 3 plus 6. Okay. Now see here, 3 3 is 9, 3 is 27 minus what? 3 3 is 9, no चौक 36. तो 36 और plus 9. Okay, then see here, 9 positive and 9, sorry 27 9, what, 36 minus 36, what will be the answer, 0. It means it is the factor of this, x minus 3 is the factor of x cube minus 3. So अगर हमें फैक्टर चेक करना है, उसमें भी हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है, उसमें भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। फिर यूज कैसे करते हैं, तो हम p के वैल्यू रख के करते हैं। वैल्यू लाते कहाँ से हैं, तो जहाँ जिससे भी डिवाइड करना हो, जिसको भी चेक करना हो, जिससे डिवाइड करना हो और जिसको चेक करना हो, उतना इसको टू 0 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद में अब x की वैल्यू पुट कर दो सभी जगह, आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यही है जो मैंने लिखा था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सॉरी, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है जो x minus 1 is the factor of px, x minus 1 is the factor of px, then the find the value of k। एक बात बताओ, अगर किसी का फैक्टर बोल रहा है जो px है, इसका मतलब है अगर मैं उसके वैल्यू पुट करूँ, x के वैल्यू पुट करूँ p में, तो रिजल्ट कितना, 0 आना चाहिए, सिंपल सी है। अगर फैक्टर है
तो रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो सीधा सा बताओ आप, अगर कह रहा है जो x-1 फैक्टर है, क्वेश्चन कह रहा है चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं फैक्टर हूँ, मैं फैक्टर हूँ, तो भाई फैक्टर हो तो चिल्ला क्यों रहे हो? x-1, तो सीधा कर दो आप x-1 इक्वल्स टू व्हाट? 0। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट? 1। तो वैल्यू ऑफ x बिकम 1। नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ p1, p ऑफ 1 शुड बी 0। वाई? क्योंकि फैक्टर है। तो अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ इसके जगह पे p ऑफ 1 इक्वल्स टू k और 1 की जगह कितना? x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसके जगह आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? k माइनस √2 और इसका टू तो 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फैक्टर है। तो माइनस √2 और प्लस में 1 इक्वल्स टू व्हाट? 0। देन k इक्वल्स टू व्हाट? k इक्वल्स टू आ गया √2 माइनस 1। इट इज आंसर। सिंपल सी यार। तो फैक्टर पूछ रहा, अगर कह रहा है जो फैक्टर है तो रिजल्ट 0 होगा, है ना? तो p ऑफ 1 के वैल्यू पुट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 0। अगेन नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसका कुछ फैक्टराइजेशन होता है। कैसे पॉलिनोमियल फैक्टराइज करते हैं? तो उसको फैक्टराइज करने के 2-3 प्रोसेस होते हैं। पहला कॉमन मेथड्स, जैसे क्या, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल आपने लिख दिया, इसको छोड़ो, अब मैं सीधा से एग्जांपल इसी को लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है क्या? x² माइनस x, इसे हमें फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। तो कॉमन मेथड से करेंगे। क्या क्या? दोनों में, जो दोनों में उसे कॉमन बाहर निकाल दो। x इंटू x माइनस 1 हो गया। इट इज फैक्टर ऑफ x² माइनस 1। अब इसमें से x से भी आप भाग दोगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा, x माइनस 1 से ही भाग दोगे फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। करके देख लीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या करना है? हमें ग्रुप में रहता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे a b b c a x c x है ना, तो a वाला को एक जगह रख दिया, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, अब कॉमन ले लिया हमने, b इसमें भी है, b इसमें भी है, b कॉमन ले लिए, a प्लस सी, और यहाँ पे x इसमें भी है, x इसमें भी, x कॉमन ले लिए, a प्लस ए, फिर आ गया आंसर। ठीक है, तो ग्रुपिंग से भी होता है। एंड तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। और यह हम पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, किसमें? 8th क्लास में, है ना? समझ में आया होगा? नहीं आया है ना? पढ़ते नहीं है तो कहाँ से आएगा? जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है। Here we see that the x² plus bx plus c is equals to x² p plus qx plus pq. Now let us see here x plus p and qx। एक एग्जांपल लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा सारा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट। कुछ थ्योरम का ही नाम है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थ्योरम। तो मिडिल टर्म को अगर आप स्प्लिट करते हो, इसका मतलब है जो सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म का जो सम होना चाहिए वो b के बराबर होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? c के बराबर होना चाहिए। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। बी सी आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। लेट अस मूव टू द एग्जांपल। व्हाट? 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज? तो सबसे पहले आपको इस टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है इस टर्म से। कोएफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट से। कितना हो गया? यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ 30 हो गया। अब क्या करना है? इस 30 को आप फैक्टराइज करो। तो हम सिंपल से करते हैं 2 से। 2 15 जा, 3 5 जा, है ना? 2 15 जा, 3 5 जा, 15 5 1 जा। ओके, तो क्या क्या हो सकता है इसमें? पॉसिबिलिटी हो सकता है व्हाट? 5 2 जा 10, है ना? 10 इंटू 3 हो सकती है। ओके, 3 2 जा 6 इंटू 5 हो सकता है, 6 इंटू 5 हो सकता है। ओके, 15 इंटू 2 हो सकता है। ओके, तो चलो दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम कोई दो ऐसे टर्म बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 30 आना चाहिए, तो 30 से तो सब में आ रहा है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आ रहा है सबसे 30 आ रहा है। लेकिन चलो 30 वाली बात तो बन गई है।
लेकिन हम अगर इस दोनों टर्म को ऐड करें ना, इस दोनों टर्म को ऐड करें ना, तो कितना आना चाहिए, बीच में जितना है यहाँ पे मिडिल टर्म्स में 17 है तो 17 आना चाहिए। तो 10 + 3 13 हो गया, गलत काट दो, नहीं बात बनने वाली यहाँ पे। 6 × 5 30 तो हो रहा है, लेकिन 6 × 5 11 11 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ भी हमारी बात नहीं बनेगी। आगे चलते कहीं और बन जाएगी बात। यहाँ पर देखते हैं 15 + 2, तो 15 + 2 कितना 17, तो 17 यहाँ भी 17, इसका मतलब यहाँ बात बन रही है ना। तो इसको हम यूज कर लेते हैं, फटाक से लिख देते हैं व्हाट 6x² + 15x + 2x + 5। अब बताइए, आप क्वेश्चन में कोई अफेक्ट पड़ा? यहाँ पर 15x + 2x कर दिए, 17x आ गया, ठीक है। 5 की जगह 5 है, 6² की जगह 6² है। यार वी टेक ए कॉमन, x दोनों में है यहाँ पे, तो x कॉमन ले लेंगे पहले। और कुछ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 3 भी आ सकता है, क्योंकि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो हम 3 भी कॉमन ले लिया। तो अब कितना बचा 3x, तो हो गया 2x प्लस साइन प्लस 3 5 या 15 5 प्लस 1 ले लिया कॉमन 2x + 5। अब क्या हो सकता है 3 और इसको दोनों बाहर वाले को एक साथ रख दो आप, तो 3x + 1 और दोनों अंदर वाले को एक, दोनों अंदर वाला सेम ही होगा हमेशा 2x + 5, ठीक है। ये क्या हो गया फैक्टर हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल्स का। समझ में आया आपको। मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालने के बाद में आप देखो मल्टीप्लाई करने के बाद में प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ऐड करने के बाद में मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है, फिर कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें हम फैक्टराइज तो करेंगे, लेकिन यूज किसका करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का। सबसे आसान है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। a² + b² तो आप छठी क्लास से पढ़ रहे तो याद ही होगा। a - b के होल स्क्वायर ये भी याद होगा, है ना, सिर्फ y की जगह माइनस लगाना होता है। x + y ये भी याद होगा, और x + b आप पिछली क्लास में आप पढ़े हो, याद कीजिए। थोड़ा नहीं होता है तो अभी एक लिस्ट बनाइए उसको और सबको याद कर लीजिए आराम से, एक बार लिखिए अच्छे से, एकदम सुंदर से राइटिंग से याद हो जाएगा। x + y ये सब क्या है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ये सब याद होना हमें ज़रूरी है, तो हमें और आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार आप इसको अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आप पे डिपेंड है, आप कितना जल्दी किस तरीके से कैसे भी करके याद कर लो। सोचोगे तो अपने आप 100 बहाने मिल जाते हैं, है ना, 10 तो मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्टराइज द 8x³ + 27y³ + 36x² y + 54x। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इसको हमें फैक्टराइज तो करना है, लेकिन यूज करना है किसको, आइडेंटिटीज को यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, q यहाँ पे है तो किसका q हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x के होल q लिख सकते हैं, प्लस 3y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस और क्या लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 3 × 4 × 12 सॉरी हाँ 3 × कितना 2x², 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, तो स्क्वायर × 3y प्लस वी कैन राइट 3 × what 3 × 2x × 3y का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = अब आपके दिमाग में हो रहा है सर आप ही कैसे खटाखट कर दिया, बात तो बन रही है लेकिन हमारे दिमाग में कैसे आएगा। तो कैसे आएगा दिमाग में, इसके लिए आपको फार्मूला कौन सा याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या है, x + y के होल क्यू इसका स्टूप क्या, क्योंकि यहाँ पर हम q देख रहे हैं तो q वाला फार्मूला लगेगा, सीधी सी बात है। तो x³ + y³ + 3xy ×
x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये फार्मूला हम यहाँ पर किए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जब स्प्लिट किए यहाँ पर इसको हम x मान लिए, इसको हम y मान लिए, ठीक है। अब इसी के हिसाब से फिर x हो गया और फिर ये y हो गया, यहाँ भी x हो गया और y हो गया। अब हम सेम इस फार्मूला में बिठा दिए। अब फार्मूला में किसका क्या कह रहा है, किसका फार्मूला है, x प्लस वाई का होल क्यू का है, x प्लस वाई का होल क्यू का है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2x प्लस 3y का होल क्यू होगा। इसको और हम एक तरीका से लिख सकते हैं, 2x प्लस मल्टीप्लाई करके 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ओके, now we can write, no, it's enough. Let us move to the next example. फैक्टराइज द 4x स्क्वायर प्लस 4y। इसको फिर से फैक्टराइज करना है, तो यहाँ हम स्क्वायर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर का लगेगा, किसी न किसी स्क्वायर का ही लगेगा, लेकिन किसी न किसी में से किसका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, z भी दिख रहा है, मतलब 3 टर्म दिख रहा है। इसका मतलब x y z तीनों का फॉर्मूला लगेगा। तो एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी टर्म को हम लिख सकते हैं कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, बट 2x इंटू वाई 2 इंटू 2x इंटू वाई माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2x इंटू वाई, नॉट 2 इंटू, इसके लिए y and z, the no need to write x terms, y into x, sorry z, it is nothing. Another thing for this, plus 2 into 2x into z, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आगे इसी चीज़ का हमने लिखा, इसको तोड़ के लिखा यहाँ पे, ताकि 2 2 जा 4x z आ गया, इसको तोड़ के यहाँ पे लिखा, 2yz आ गया और इसको तोड़ के यहाँ पे लिखा, बाकी यहाँ पे है। तो किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्लस प्लस है, तो प्लस माइनस किसके पीछे है, देखिए यहाँ पे माइनस कहाँ कहाँ लगाना पड़ा हमें, माइनस y के पास है ना, इसको हम लिख सकते हैं। अब पता चला y के पास कैसे माइनस हो, देखिए यहाँ पे अगर x के पास माइनस होता, मैं मान लेता हूँ x के पास माइनस है, तो अगर x के पास माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, यहाँ माइनस तो है नहीं, इसका मतलब y के पास माइनस है, जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस है, तो हम y के पीछे माइनस लगाएंगे और आंसर आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, 2x माइनस वाई प्लस जेड into 2x minus y plus z. Okay, now we can write like this. It is the factor of which these term. So I hope आपको समझ में आ गया होगा, आया समझ में, नहीं आया आ गया समझ में, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आया नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो आप लाइक कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा दूसरा जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप मिस नहीं कर पाए, ठीक है। और बेल आइकन का भी दबा लीजिएगा, उससे क्या होगा, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।